And tonight, all the matches have been action-packed matches, and except one game, the second game, there have been fantastic contests. Rashad Afridi needs no introduction nowadays, has earned a huge name for himself. He will be bowling to Umar Bajwa. Here we go. Chota Wiki it is! And it's in the air. Oh my word. Was that a bumble? Now, there was a little bit of confusion in my mind. I just get the feeling that was a bum ball. Was that? Need to take a look at the replay. जी हाँ बिल्कुल शॉर्ट से तो यही लगा है, लेकिन रिप्ले में चेक करेंगे तो मज़ीद आपको बेहतर बता सकते हैं. गेंद बल्ले पे भी नहीं सही आई. ये रिप्ले में चेक करेंगे. बिल्कुल टॉप पे लगा ये गेंद और कैच वहाँ पर ड्रॉप हुआ. इरशाद अफरीदी एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे. इस बार अच्छा गेंद उसे सीधा खेला. फील्डर मौजूद पीछे, आसानी एक बनाने में कामयाब हुए. मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में भी 90-100 के राउंड बोर्ड जो है वो रन्स बन जाएंगे और वो चेज भी हो जाएंगे. You can ask all those things, prediction master, but I don't want to stick my neck out. I agree with you. अभी तक अच्छी बॉलिंग इरशाद अफरीदी की जानब से. एक बार फिर से उमर बाजवा को ये चेंज ऑफ पेस पर रोल किया फिंगर्स को, क्योंकि अब विकेट में वो दम खम नहीं रहा. ऑन द माइक commentary, Sarafas Malak. It's the most senior with me. Mohammed Kamar, entertaining the viewers with his melodious voice. Thank you so much. आपने हमेशा अपने जूनियर्स को हौसला दिया है, जूनियर्स का हौसला बढ़ाया है. इरशाद अफरीदी, ये अच्छा गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन ये उस लाइन से बाहर था. रो इमरान ने इशारा दिया कि ये गेंद ऑफ स्टंप से हादसा बाहर रहा, लेकिन स्विंग हुआ ये भी, क्योंकि इससे पहले मैंने बात की कि विकेट में वो दमखम नहीं रहा, लेकिन अगला ही गेंद जो है वो अच्छा खासा स्विंग हुआ. Have a look at that. Yeah, Ro Imran has just joined the panel. He's a very vigilant umpire in tape ball. I just call him Simon Toffel of tape ball. जी हाँ बिल्कुल. ये आखिरी मुकाबला है इस आज की शाम का. इरशाद अफरीदी, जिनका अभी तक अच्छा दौर गुजर रहा है, इस बार फुल टॉस गेंद उसे मोड़ा. मिड विकेट एरिया में फील्डर तैनात पीछे. ये अच्छी चीज़ है एफएस भाई के एक ओवर पावर प्ले का रखा गया है और फील्डर्स जो हैं वो बॉलर अपनी मर्जी से रख रहे हैं. जहाँ पे बॉल कर रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट बॉल्स वहाँ पे ही जा रही हैं. And the other thing is that you would have noticed that was a low full toss, the last delivery, and had a bit of tail. And that tail in this part of the night, the later part of the night, really causes worries to the batters. No matter how talented they are, how much good a form they're in, still there is a big question. इरशाद, ये भी अच्छा गेंद. इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के पास ये गेंद रहा और बड़ी सोच समझ के साथ बॉलिंग की जा रही है. इरशाद अफरीदी का ये कैरियर का सबसे अच्छा दौर गुजर रहा है, क्योंकि जब ड्राफ्टिंग हुई तो सबसे पहली पिक तैमूर मिर्ज़ा की इरशाद अफरीदी थी. हालांकि जब भी किसी बड़े इवेंट्स के लिए जाते हैं तो सबसे पहले को बड़ा बैटर चुनते हैं अपनी टीम के लिए, अपने लिए. Yeah, he has been having a very good form nowadays with the ball. Rashad Afridi. इरशाद, ये भी अच्छा गेम था. वसीम लेफ्टी जो है वो गेंद को पकड़ने में कामयाब हुए और यूं एक बासानी बनाने में कामयाब हुए. एंड ऑफ द फर्स्ट, 4 for no loss by Team Multan. Yeah, very good start this for Gujranwala. Rashad Afridi, the premier bowler, has really delivered, and that too against two of the big fellas at the tape ball. Umar Bajwa and Chota Wiki on their day can demolish any bowling lineup. And if you bowl such economical over against these type of batters, it really goes to show how good a form you're in as a bowler.
So he's having a rich vein of form nowadays with the ball, Rashad Afridi. And on the other hand, what reminds me of somebody like Inam Lefty, who merged as a very good fine prospect, has bowled brilliantly tonight as well in his matches, has merged as a star bowler. And the other thing is, I miss at times Safi Miyawali as well. He also is a very impressive exponent. जी हाँ बिल्कुल, ये तमाम तर जो बॉलर्स हैं बड़ी महारत के साथ बॉलिंग करते हैं। टेप बॉल क्रिकेट में इनको हर तरह की कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। समटाइम इनको जो सिमटेड विकेट्स हैं उन पे बॉलिंग करना पड़ती है। तो ये जो है वो इनकी हिम्मत है, जितनी जदीद और फास्ट क्रिकेट हो चुकी है। तैमूर मिर्ज़ा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो ड्रीम स्टार्ट बाय इरशाद अफरीदी। पहले ओवर के बाद सिर्फ 4 आए और शवेज लेफ्टी, इन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग की थी। अवे फ्रॉम द बॉडी, गेंद को ये खिलाना पसंद करते हैं, बॉडी से दूर। छोटा विकी अब सामना करेंगे शवेज का। ये किनारा लगा है, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और पकड़ा गया कैच। यूं छोटा विकी की निंका हाथ में हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान है टीम मुल्तान के लिए। शवेज लेफ्टी ने भी वही किया जो इससे पहले इरशाद अफरीदी करना चाह रहे थे। सो एक और, बल्कि पहली ये कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। इट्स नॉट अ गुड स्टार्ट बाय छोटा विकी। Continuing his good form with the ball, Chavez there using the angle, just making him play against the bounce of the ball, because that was a touch higher. He tried to pull that. He's normally a very good puller of the ball, mind you, Chota Wiki, but on that occasion got the top edge and he was caught at the boundary. It was a good catch. Swirlers are not easy, but that really was taken to good effect. And that makes Chandu Chishtiyan get to the wicket. जी हाँ, चंदू ने अब ज्वाइन किया है और शवेज की ये खासियत रही है, जब जब उनको बॉलिंग करने का मौका मिला है इन्होंने हमेशा प्लान के तहत बॉलिंग की है, बॉडी से दूर खिलाया। ये भी गेंद अगर आप देखें, जिस गेंद पे विकेट हासिल किया, ये काफ़ी दूर था और पड़ने के बाद थोड़ा राइज अप भी हुआ, उस वजह से गेंद जो है वो किनारे पे लगा और थर्ड मैन पे फील्डर ने बड़ा आसान कैच लिया। हालांकि उस एरिया में फील्डर जो है वो कैचेस बहुत कम पकड़ते हैं। It was a good catch, but having said that, the ball got a little bit of extra lift off the surface, and the high bounce has undone Chota Wiki. शवेज एक बार फिर से सामना करेंगे चंदू चिश्तियां। ये इस बार रोल किया फिंगर्स को, लेग स्टंप से हासी बाहर रही, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर आप जब रोल्स करते हैं फिंगर्स को, एंगल के साथ गेंद आपका बाहर निकलता है तो मुश्किल होता है। छोटा विकी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं। गोल्डन पे पड़ा था ये गेंद और टॉप एज लगा, थर्ड मैन पे फील्डर। मोस्टली टेप बॉल क्रिकेट में इस एरिया में कैचेस नहीं होते, लेकिन बदकिस्मती से छोटा विकी का कैच हुआ है और यहाँ पर पुल किया। गेंद ग्राउंड के उस पार, 6 रन्स के लिए। First maximum by CC Brand from Chishtiyan, off the mark with a gigantic shot. Whoa, that really was a cracker by the batsman. He has absolutely nailed it out of the middle of the bat. It went flat and it went all the way. He was waiting for that short pitch length, quickly onto the back foot and bang. एक बार फिर से शवेज लेफ्टी सामना करेंगे चंदू चिश्तियां। ये अच्छा गेंद। Oh my God! Up in the sky, will should be taken. Fielder is under it. Oh yes, it is. Into the crowd. Supercalifragilisticexpialidocious. Oh, those were the spectators, not the fielders. Come on, you're just getting emotions running high on you. जी हाँ, मुझे यही लगा कि शायद मुलाकात अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छी खासी मुलाकात, जो स्टैंड्स में जा गिरा ये गेंद, क्राउड में जा गिरा। Oh, it was a serious connection. I tell you what, it went plenty of rows back. Huge hit over mid wicket. Sorry चंदू, शवेज लेफ्टी एक बार फिर से। Up she goes.
Oh my God! Into the hands. TM very safe hands. And CC Brand goes to the pavilion. Big blow by Team Multan. Yeah, he has big hands and a normally very safe pair of hands for TM. And he makes Chandra Chishtiya take a long walk back to the dugout. That really was a good catch and a good delivery, good comeback by the bowler. Shawaiz, once again, second wicket in the over. He's proving like a trump card for the boys of Gujranwala. जी हाँ बिल्कुल अच्छी बॉलिंग और तैमूर ने इस बार बैटर से ज़्यादा बॉलर्स पर असर किया है क्योंकि जब जब बड़े इवेंट्स आए हैं तो बॉलर्स ने बड़ा जो है वो उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। कलीम मुल्तानी होम टॉम बॉय हैं, इसी एरिया से इनका ताल्लुक है मुल्तान से, लेकिन तैमूर ने ये अच्छी बात है उस्ताद ज़हीर कालिया को पिक किया, अरशाद अफरीदी को पिक किया, शवेज़ लेफ्टी को पिक किया और ये अच्छा फैसला है, लेकिन फिर भी पहले मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। शवेज़ इस बार शॉट खेला, सीधा खेला इस बार और क्या शानदार कैच ग्राउंड के बाहर। नो बॉल का इशारा अंपायर एजाज अहमद जज्जा की जानब से, यकीनन पॉपिंग क्रीज को वहां पर क्रॉस किया गया है बॉलर की जानब से। How cruel this game of cricket is. I mean, you picked up 2 wickets in the over. You were conceding sixes and you're bowling a no ball as well. This is absolutely criminal. यही तो हुस्न है क्रिकेट का। शवेज लेफ्टी, वंडरफुल डिलीवरी, swing at the miss, good comeback by Shawaiz lefty. Yeah, he's bowled it slow, rolled his fingers across the bowl and got it, spot on, because if you're trying to bowl a slow ball and to get it right is very important. He got it right on that occasion and that was a dot ball, nicely bowled. जी हाँ, वही बात इससे पहले जो की जा रही थी, लेफ्ट आर्म का पहले से गेंद एंगल के साथ बाहर जाता है, जब आप रोल्स करते हैं फिंगर्स को तो मजीद गेंद जो है वो बाहरी तरफ जाता है। ये अच्छा शॉट था, ये बल्ले पे आया गेंद और गया गेंद ये मीलों मील दूर 6 रन के लिए। इट्स अ मैसिव वन बाय कलीम मुल्तानी। दूसरा छक्का इस ओवर में, टोटल 4 छक्के आए इस ओवर में। Yeah, first 6 for the local boy. He's just showing that he's in the middle with the bat and he can hit them big. He's a big striker. That really was a whack out of the ground for half a dozen. छोटा विक्की पहुंचे हैं कुछ समझाने के लिए। 2 ओवर के बाद 30 बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। टीम मुल्तान ड्रीम 11 अगेंस्ट गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स। तो ये एफएस भाई, ये मुकाबला जो है बड़ा अहमियत का अमल है क्योंकि दोनों टीम्स अपना एक मुकाबला जो है वो हार चुकी हैं। तो अगर इनमें से जो भी टीम हारेगी मज़ीद वो रेड जोन में जो है वो जाएगी, उनके लिए फिर आगे तमाम तर जो मैचेस हैं वो अच्छी रन रेट से जीतने पड़ेंगे। मुल्तान इससे पहले जो मुकाबला हारी अच्छे खासे रन से हारी है, 50+ रन से आ रहे हैं, तो वो बड़ा मैटर करेगा उनके लिए और शायद हालात पाकिस्तान टीम वाले हो जाएं। Yeah, dragging cricket ball into tight ball. Rashad Afridi continues and gets a whip by Bajwa. Mid wicket, they have a fielder planted there. उमर बाजवा ये भी अपनी कलाइयों पे बड़ा भरोसा रखते हैं, रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लाइक एहतशाम सत्ती, उमर बाजवा, बंटू भाई, उसामा अली सियालकोट, सम गुड प्लेयर्स बिलीव करते हैं अपनी कलाइयों पे और जब जब इन्होंने ये अप्लाई किया इनको मदद भी मिली है। Nicely bowled. Kaleem was not equal to the task. Now, that was a legal delivery. He's asking for a wide, but I don't think that was a wide. That was a legal delivery with the naked eye. ये तो अब अंपायर्स ही बताएंगे, अंपायर्स बेहतर जानते हैं।
यहाँ पर भी रोल किया फिंगर्स को। बाकी इससे पहले जो दोनों मैचेस हुए हैं उन तमाम मैचेस में, दोनों मैचेस में बॉलर्स ने काफ़ी ज़्यादा इशार किया है, वो चेंज ऑफ पेस पे रोल किया फिंगर्स को, बैकअप एंड स्लो बॉल्स। और शायद ये भी वजह हो सकती है कि अच्छा खासा टाइम हो चुका है, गेंद और बल्ला जो है वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहे तो बेहतर है। आई थिंक ये लीगल बॉल है। Yeah, because, to get a wide. No, it's one for the over. Yeah, correct decision made. You got to get that ball above head height to be given as a wide. Other than that, if it is above shoulder and in parallel with your head or top of the head, then it's going to be one for the over. So you can bowl one bouncer in an over. The second bouncer will be a no ball. जी हाँ, इरशाद इस बार बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, क्रॉस द लाइन, गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के पास एक बआसानी बनाने में कामयाब हुए। So Arshan Afridi is bowling brilliantly. He's continuing his good form. He's given only 4 runs in the first over and 2 so far in the first 3 deliveries. Slow ball again, Fox the batsman. This is good bowling. This is intelligent bowling. Well done. जी हाँ, यहाँ पर भी रोल्स किया अपनी फिंगर्स को। केपीके में बहुत कम ऐसे बॉलर्स हैं जो फिंगर्स को रोल्स करते हैं, क्योंकि ये तमाम तर जो केपीके के बॉलर्स हैं वो पेस पे ज़्यादा जो है वो इजहार करते हैं कि पेस पे ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि वहाँ पर छोटी विकटें। ये उस्ताद ज़हीर कालिया इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत अरसे के बाद एफएस भाई ये टीएम की टीम का हिस्सा है, क्या कहेंगे? Yeah, they're good friends as well, but they have a good rivalry. Another good delivery, slow. That was a dipper. That one dipped. You would have noticed. जी हाँ, वो जान चुके हैं कि किस तरह से बैटर्स को डिसीव करना है। यूं नहीं तैमूर मिर्जा ने पहली पिक में ने अपनी तरफ किया। इरशाद अफरीदी, ये अच्छा गेंद into the toes. If it was cricket ball, that would have been plumb LBW. Well, this is brilliant bowling by Rashad Afridi, taking nothing away from the bowler's credit. He's absolutely keeping somebody like Bajwa quiet. This is a big thing in tape ball, I can tell you. मुझे लग रहा है कि इस गेंद पे कुछ होने वाला है। Swing and a miss. Dot ball. Nothing happened off the last ball. 3 bowled, 32 for 2. Good bowling by team Gujranwala, Wasif Sports. One of the best figure. 2 for 6. Irshad Afridi. Appreciate कर रहे हैं वहाँ पर the boss of table तैमूर मिर्जा, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मोस्टली एफएस भाई देखा नहीं गया उमर बाजवा को, क्योंकि ये जो स्कोर है 6 बॉल्स पर 2 रन्स है, ये टेबल क्रिकेट में बहुत देर के बाद, बड़े अरसे के बाद देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बॉलर्स की तारीफ करना होगी, जिस तरह से बॉलिंग की है, इरशाद ने की है, शवेज ने की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग चेंज ऑफ पेस, हर गेंद की लाइन लेंथ जो है वो चेंज करके की है। तो इससे पता चलता है कि कितना काम किया है तैमूर मिर्जा की टीम ने अपनी बॉलिंग पे। Yeah, things happen very quickly in type ball, so your economy
becomes very important. And that shows how significant figure of his team he has been. Irshad Afridi bowling 2 overs for just 6 runs. Well done. Brilliant. Absolutely. Has to be some sort of record in type ball. Now brings Zahir Kalia to the bowling. He also is a very experienced campaigner. There you go. What a start. Had a bit of tail foxing the batsman. And they will concede an overthrow there. That will bring Kaleem Multani back on strike. So he's playing cricket for the last 25 years. Zahir Kalia. जी हाँ बिल्कुल ये बड़ी देर से टेबल क्रिकेट को खेलते हुए आ रहे हैं और तजर्बे से माला माल हैं उस्ताद ज़हीर कालिया. एक बार फिर से सामने कलीम मुल्तानी. इस बार बड़ा शॉट. Where is the ball? Oh my God! New ball please. One more, add to the total. Kaleem Multani. What a smash! Yeah, that really was a good strike by Kaleem Multani. He's in very good form. And Zahir Kalia is not an easy bowler to hit, I'm telling you. उस्ताद ने इस बार भी जो है वो रोल किया था फिंगर्स को, लेकिन इस बार बिल्कुल चौकस खड़े थे. That has gone further. That is out of here, Multani, you little beauty. जी हाँ, यहाँ पर आंख खुल चुकी है मुल्तान के बैटर्स की. ये पीछे फेंका गया गेंद, उसको बहुत दूर रवाना किया. बैंग. वाओ. Kaleem Multani. He has absolutely hooked it. That was hooked away over mid-wicket. You don't very often see a hook shot played to the mid-wicket direction. But Kaleem Multani is in such good form, he has hooked Kalia away for a 6. Over mid-wicket, and that brings super ball. Oh, will be a more drama now. 2 sixes and a super ball now. Right then, Multani on strike. 2 sixes already to Zahir. It's a super ball. Oh, that's a good comeback. Nicely bowled. Dot ball. जी हाँ बिल्कुल तजर्बे का भरपूर इस्तेमाल किया. वो जानते थे कि अगर इस गेंद पर बाउंड्री आ गई तो 12 रन मिलेंगे. ये अच्छा गेंद था. ये गेंद पड़ने के बाद थोड़ा अंदर आया और उस्ताद और टीएम, ZK और टीएम बहुत देर के बाद एक फ्रेम में एक टीम की तरफ से. Yeah, not only they play against each other, there is a big rivalry between TM and Zahir Kalia. Zahir Kalia is the best bowler and TM is the best batsman in Thai ball. जी हाँ, बेस्ट वर्सेस बेस्ट. Yorker, right in the block hole. Well bowled. Good comeback by the senior pro. जी हाँ, ये अच्छा कमबैक था. और हफीज़ भाई, मुझे आज भी वो मुकाबला याद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो आज से कुछ साल पहले, जिसमें गुजरांवाला और लाहौर की टीमें आपस में पंजा आजमाई कर रही थी मियाँ चन्नू PSL में. और तब लाहौर और गुजरांवाला का जो मबैन मुकाबला हुआ था वो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला था. उस मुकाबले में बहुत कुछ हुआ था. Yeah, great memories. Absolutely great memories. Slow one, outside edge, just goes past the wicket keeper. It's Shoaib Buzdar who is keeping wickets. Normally they have TM doing that job. Coming back to that memory that you have inserted, just amazing. I really enjoyed every bit of it in that tournament back in Mianchanu. 4 ball, 48 for 2.
ये आखिरी 12 बॉल्स हैं और उन 12 बॉल्स पर सिर्फ 18 रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं। इससे पिछला ओवर जो है वो महज 2 रन्स पर गुजरा। पहला विकेट 4 रन्स पर गिरा, दूसरा विकेट 17 पे गिरा और ये थोड़ी पार्टनरशिप जो है वो बिल्डअप हो रही है। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है। करंट रन रेट जो है वो 12 का है। अगर इसी एवरेज के साथ जाते हैं तो 72 रन्स बनेंगे।
Welcome back from the DHA Sports Club. Multan, there was a little bit of technical glitch. That's why we took a little bit of pause, and now we are back live. So it's going to be Umar Bajwa on strike. 48 for 2 in 4 overs. It's going to be start of the second last over, penultimate over. जी हाँ, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर वक्फे के बावजूद सूरत हाल जो है वो वही है जो वक्फे से पहले थी। उमर बाजवा की स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं एफएस भाई। ये गेंद भी अवे फ्रॉम द बॉडी पड़ने के बाद मजीद बाहर निकला और उमर बाजवा स्ट्रगल करते हुए। He's having a tough time. It's not Bajwa, we all know, you know. He's kind of a player who can take any bowler to the cleaners. But tonight has been off color. जी हाँ, बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं उमर बाजवा। वाजिद लेफ्टी। No, that was down the leg side, will be given as a wide. So we'll have to be careful with the line. He's just trying those slow balls, trying the variations, Wajid, the bowler. जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स ने आज वेरिएशन का अच्छा इस्तेमाल किया है और जब जब वेरिएशंस की है कामयाबी भी पाई है। ये अच्छी बात है बॉलर्स के लिए। आने वाले तमाम मैचेस के लिए आने वाली तमाम शामें तमाम 10 बॉलर्स जो हैं वो ये देख रहे हैं। Shoji, who's operating, and he's bowling brilliantly in this penultimate over. Sorry, Shoji by Meal from Murray, experienced campaigner, और उमर बाजवा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त डीएचए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 49 for 2, 4.2 overs. Shoji by Meal once again. This is high up in the air. It was in the cards. Will this be held? Kalia doesn't drop those. He's an experienced bowler and he has taken a beauty, Zahir Kalia. And the struggle comes to an end by Umar Bajwa with the bat. He was absolutely going nowhere. It's a sorry innings by Bajwa and he's now removed from the scene. जी हाँ, ये गेंद भी अवे फ्रॉम द बॉडी और रफ्तार में कमी की और कोई गलती नहीं वहां पर फील्डर उस्ताद जहीर कालिया की। और यूं एक और कामयाबी टीम गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स के लिए। उमर बाजवा बोझल कदमों से वापस अपने खेमे में पहुंचेंगे। मुश्किलात में गिरी हुई टीम मुल्तान, यही एक्सेप्ट किया जा रहा था एफएस भाई के ये मुल्तान का अपना ग्राउंड है, अपनी कंडीशंस हैं, इसमें वो मज़ीद बेहतर खेलेंगी। लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो हो जाएगी। मुल्तानी बॉय कलीम मुल्तानी ज़रूर विकेट पे मौजूद हैं, 10 गेंदों पे 26 रन बनाए हैं। लेकिन दूसरी जानब बॉलर जो हैं वो बिल्कुल रन्स बनाने नहीं दे रहे। Shoji is bowling brilliantly at the moment. But he bowls a big wide. Good effort by Buzdar behind the stumps. That one, he has taken it from the second slip, would you believe? जी हाँ, गेंद पड़ने के बाद मजीद बाहर निकला। ये अच्छी सोच है एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर। अगर आप देखें तो अवे फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि मोस्टली बैटर्स जो हैं वो क्रॉस द लाइन। ये रिप्ले में चेक कीजिएगा। And have a look at that great anticipation by the wicketkeeper Buzdar on that occasion. That was going away and he anticipated and dived and stopped. Well done, son. जी हाँ, अच्छी कीपिंग विकेटों के पीछे शोएब बुज़दार की।
शोजिबाई मील एक बार फिर से Another good delivery by Shoji. Will be a leg by. He wants a second, Kaleem Multani, but it's not on. We'll have to settle for one. अच्छी बॉलिंग यहाँ पर शोजिबाई मील और उनके साथ जितने भी बॉलर्स हैं उन तमाम की बड़ी शानदार बॉलिंग रही है आज की शाम में और बॉलर्स ने सही जो है दबदबा रखा है जितने भी लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं वो चेंज ऑफ पेस के साथ वेरिएशन के साथ बैटर्स पर अच्छा खासा दबदबा रखा है उन्होंने Yeah, you're quite right. They're being very economical. Shorter one this time, gets the edge. It's a no ball. What is going to happen now? It's going to be a freebie. All of a sudden, he's bowled a no ball. That was not expected by him. He's bowling brilliantly at the moment, but just gets over the line. जी हाँ किस्मत साथ दे रही है लेकिन बैटर्स कुछ नहीं कर पा रहे सवाए कलीम मुल्तानी के ये सेकंड लास्ट ओवर है कलीम मुल्तानी आखिरी उम्मीद की किरण है टीम मुल्तान ड्रीम 11 के लिए Now, did he time that properly? No, I don't think so. This will only be a single. So even after bowling a no ball, it's a good comeback. And still, he has taken control of the things so far with the ball. But it's going to be another no ball, or is it? Aruj DAP, diammonium phosphate, chemical analysis. Our sponsors, JDW. JDW Sugar Mills Limited. Aruj DAP. Thank you so much for being the part of Pakistan Thai Bowl Championship. जी हाँ कोई भी बड़ा इवेंट हो और उनमें स्पॉन्सर जो हैं उनका बड़ा हाथ होता है और थैंक यू वेरी मच अरूज डीएपी क्ले मुल्तानी और जहान विकेट पे मौजूद है Squeezed away this time and we'll pick up a couple. मुतमिन है तैमूर मिर्ज़ा अपनी टीम की बॉलिंग से जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है उस्ताद ज़हीर शोजिबाई मील शवेज़ लेफ्टी हालांकि अभी सदाम शाह लिया का आना बाकी है क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं और एक उम्र खर्च की है उन्होंने भी टेबल क्रिकेट में Yeah, you're right, because he went for few in the first over. That is understandable, but he has a lot of experience, Saddam Laya. So on his day, he can be a match winner. इरशाद अफरीदी ने भी बड़ी लाजवाब बॉलिंग की है 2 ओवर में मैच 6 रन दिए हैं वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप बाय टीम गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स शोजिबाई मील आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की Now that is a wide outside the off stump with the angle, taking the ball further away. It's just proving to be a long over this by Shoji. 2 wides, 3 wides, 3 no balls. रन्स बनाने का मौका मिल रहा है लेकिन रन्स बन नहीं रहे Yeah, there's nothing coming off the bat, you know. Only wides and no balls are not going to help their cause. They need to hit sixes, which they aren't able to do so. जी हाँ यहाँ पर भी अच्छा खासा फाइटिंग टोटल हो सकता है This is
piked away. Top of the bar. Oh, helps it go top of the bar. Would you believe? That should have been taken. Alias Jani, as a fielder name. Very poor effort by Alias Jani. So, end of the 5th. Such a beautiful view this of DHA Sports Complex behind the ground, beyond the ground. This is a beautiful view, really. The road, phenomenal picture. And I just love the peace in the DHA here in Multan. Very peaceful environment. जी हाँ, यहाँ पर जब जब भी मौका मिला है काम करने का और एंजॉय किया है. सो अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि जो आखिरी गेंद थी उस पे बाउंड्री आई या फिर वो सेफ हुई. क्ली मुल्तानी और चांद इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं. रन्स बहुत कम है एफएस भाई, क्योंकि सामने तैमूर मिर्ज़ा हैं, सामने अलियास जानी हैं, सामने वसीम लेफ्टी हैं. Shoaib बुज़दार इज़ अ की मैन. उन्होंने अभी पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी. हालांकि तैमूर पहले ओवर में आउट हुए थे तो लग यही रहा था रन्स नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी ये वो. This is the replay of the last boundary check. The fielder claims that he has saved the boundary on the second attempt. On the first attempt, he helped the ball go over the bar. And then on the second attempt, he says that he has prevented the boundary. 5 ओवर के बाद 60 रन बन चुके हैं. 3 खिलाड़ी मुल्तान के अपने खेमे में जा पहुंचे हैं और ज़हीर कालिया बड़ा मुनफरद अंदाज है इनका बॉलिंग का. इस बार काफी ऊपर फील्डर नीचे मौजूद हैं और क्या शानदार कैच लिया है शोएब बुज़दार ने. कहां से दौड़े, कहां पहुंचे और क्या शानदार कैच. दाद वसूल कर रहे हैं तैमूर मिर्जा से. Yeah, he ran about 20 to 25 meters to his right to get under that ball, and he has pouched it brilliantly. That's a very good catch. Good fielding. This is a very good effort. One good effort by Shoaib Buzdar, the wicket keeper. And we are there somewhere. Kamar. ये अच्छा आगाज इस ओवर का विकेट से. और हफीज भाई यही बात कर रहा था कि बड़ा मुनफरद अंदाज है, बड़ा यूनिक उस्ताद ज़हीर कालिया का पोज है ड्यूरिंग बॉलिंग रनअप. एक बार फिर से बादशाह खान. इस बार अच्छा गेंद पैरों पर पड़ा. बैकवर्ड स्क्वायर लेग का एरिया जहां पर वसीम लेफ्टी मौजूद थे, बासानी एक बनाने में कामयाब हुए. 1 more add to the total. 61 for 4. 5.2 by Team Multan. अच्छी बॉलिंग अभी तक उस्ताद की, अच्छी बॉलिंग अरशाद अफरीदी की, अच्छी बॉलिंग शवेज लेफ्टी की, अच्छी बॉलिंग शोजी भाई मील की. तमाम तर्ज बॉलर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है इस आज की शाम के आखिरी मुकाबले में. क्ली मुल्तानी अभी भी आखिरी उम्मीद की किरण जो इस वक्त विकेट पे मौजूद है. ये अच्छा गेंद और उसे उतनी उंगली के साथ खेल दिया लॉन्ग ऑफ के पार 6 रन के लिए.
एक और बुलंद वाला छक्का कलीम मुल्तानी। ये वाहद बैटर हैं जिनको अपना होम टाउन जो है वो रास आया है। Not much wrong with the delivery, it was almost close to a good Yorker. It was a low full toss, and how did he get under the ball? Kaleem was just phenomenal and dispatched it over the head of the bowler for the maximum. That goes to show how cruel this game is and how minimal the margin for error being a bowler. जी हाँ बिल्कुल मुश्किल गेंद था जिसपे पिल पड़े कलीम मुल्तानी। इस बार up he goes, another one, 2-2. These are not sixes, these are 12s. It's a Super Bowl again. And this is the momentum they needed. Multan. Have a look at that. Excellent power. And into the stands. कलीम मुल्तानी 50 रन्स मुकम्मल कर चुके हैं। Oh, what a beautiful picture this of DHA. Oh, tailing delivery beats everyone except the fielder on the boundary. Now they are risking, and the throw doesn't hit the stumps. Good backing up by Buzdar, the wicketkeeper. जी हाँ 3 रन्स बनेंगे बगैर किसी गेंद के और ये बड़ा खूबसूरत मंजर है DHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जहाँ पर पाकिस्तान टेबल चैंपियनशिप का आज पहला रोज है, पहली शाम है और बड़ा शानदार मंजर। Zirkalia into the bowling. Yeah, what a beautiful picture we witnessed of the DHA. जहीर एक बार फिर से bang on target. How did that miss the stumps? That ball deserved to crash into the stumps. The tail on it really takes the ball away from the leg stump. Other than that, have a look at that in the replay. Oh my dearie! You got to have a wicket on that type of delivery, don't you? जी हाँ बिल्कुल स्टम्प्स को छोड़े अगर एलबी भी होता तो वो भी क्लियर आउट ही था लेकिन ये It was tailing away from the leg stump. I'm saying the tail on it has taken the ball away from the leg stump. That deserved to hit the stumps, but wasn't the case. This is what I was telling you. जी आखिरी गेंद उस्ताद ज़हीर कालिया। इस बार बड़ा शॉट, बहुत बड़ा शॉट था ये और तमाशाइयों के बीचों बीच ये गेंद गिरा जाकर। Yeah, big finish to the innings then by the big striker, Badshah. Multani not out on 57. Finishes things off in style by hitting a maximum to Zahir. 94 is the score. Unbelievable. What a coincidence. We have had 94 in the last match and now 94 again in the final match of the date. Wow, that is something incredible. Have a look at that. This is how he has finished things off in style. Multani, look at those eyes, those crazy eyes. Just watching the ball carefully at the last minute and dispatching it out of the ground. And this is what we get now. 94 in 6 overs will be a target of 95 for the boys of Gujranwala to chase. I don't think there will be any problem, but the time will tell what happens. Predicting cricket, oh my word, you got to be a mad person to predict in type ball.
वेलकम बैक अगेन जी। और आहिस्ता आहिस्ता एक बेहतरीन टारगेट की जानब पहुंची यहाँ पर मुल्तान ड्रीम 11। गुजरांवाला की टीम इससे पहला मुकाबला हार चुकी है, मुल्तान की टीम पहला मुकाबला हार चुकी है। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत ज़रूरी है। आखिरी 2 ओवर्स बड़े अच्छे गुजरे हैं मुल्तान के लिए। गुजरांवाला की टीम के लिए मुकाबला जीतना इंतहाई ज़रूरी है। इलियास जानी और तैमूर मिर्ज़ा बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। 95 रन बनाने हैं गालिबन। जी हाँ, 6 ओवर हैं, 36 गेंदें हैं, 95 रन बनाने हैं। और अच्छी बात यह है मुल्तान के लिए कि जैद लेफ्टी ने एज ए बॉलर उनको ज्वाइन कर लिया है। पिछला मैच देखा जाए तो 173 रन आए थे मुल्तान ड्रीम 11 को, जो कि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हुआ। रन रेट अच्छा नहीं है यकीनन मुल्तान का। गुजरांवाला भी पिछला मुकाबला हारी है, लेकिन रन रेट अगर मुकाबला किया जाए मुल्तान ड्रीम 11 का तो उससे खासा बेहतर है। पहले ओवर के लिए किसको बॉल थमाया जाएगा? जैद लेफ्टी, जी हाँ, जिनका ताल्लुक नारोवाल से है। ये याद रखना है कि एक ओवर जो है वो पावर प्ले का भी है, वो बैटिंग टीम अपनी मर्जी से ले सकती है। 3 सुपर बॉल्स हैं, वो 3 की 3 इकट्ठी भी ली जा सकती हैं। सुपर बॉल्स में जो रन्स आएंगे वो बल्ले से आने वाले जो रन्स हैं वो डबल काउंट किए जाएंगे। बाकी तमाम तर जो रन्स हैं वो जिस तरह से आम रूटीन में आप देखते हैं कि वाइट बॉल है उसकी सिंगल, नो बॉल उसकी सिंगल, लेग बाई, जिस तरह से भी रन्स आए वो डबल नहीं होंगे। 95 रन्स बनाने हैं और सामने मौजूद हैं तैमूर मिर्ज़ा। आखिरी मैच है, 6 ओवर का ये मुकाबला। जैद लेफ्टी पहले गेंद के लिए आए हैं। पहली गेंद, गुड बॉय, गुड नाइट, टीम इज गॉन, बल्ला फेंक दिया है। पिछले मुकाबले में भी पहले ओवर में ही टीम का साथ छोड़ गए थे और जैद लेफ्टी ने बड़ा खूबसूरत गेंद बिल्कुल शाहरुखाना चित किया है यहां पर तैमूर मिर्ज़ा को। इलियास जानी मौजूद हैं। ये क्रिकेट है, पहले 4 ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि एकतरफा मुकाबला है, एकतरफा हार जाएगी मुल्तान ड्रीम 11। ये देखिए, वाओ, एक्सीलेंट फ्रॉम जैद लेफ्टी। गेंद तैमूर मिर्ज़ा के दिफा को पाश पाश करते हुए स्टंप्स को जा टकराई है। बड़ा विकेट। कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद अयूब ने। बहुत शुक्रिया वकार। बड़ा ज़बरदस्त बॉल जैद लेफ्टी की जानिब से, और जितना हम यहाँ पे इस बॉल को देखकर महसूस हो रहे हैं, मेरे ख्याल है जो हमारे नाजरीन हैं वो भी बड़ा इंजॉय किया होगा। उन्होंने इस बॉल को बिल्कुल नहीं समझ पाए तैमूर मिर्ज़ा। दूसरा बॉल करवाएंगे जैद। वाह, वंडरफुल कनेक्शन, शुएब बुज़दार। शायद सेम वही बॉल करना चाह रहे थे जैद, लेकिन इस बार फुल टॉस बनाया और छक्का आया। ये उनके चाहने वाले बिल्कुल विकेट पर आकर उनको जो है ना इनाम दे रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी की थी शुएब ने पिछले मैच में भी।
ये टेप बॉल का हुस्न है। अंकल ने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया है शुएब बुज़दार के साथ। ज़ैद एक बार फिर, इस बार भी गेंद को लग गए पर गेंद इस बार पहुंचा 6 रन के लिए। 2 गेंदें 2 लगातार छक्के। तैमूर मिर्जा आउट जरूर हुए लेकिन ये 2 छक्के लगाकर शुएब बुज़दार ने तमाम तर जो प्रेशर था वो खत्म किया है। 2 गेंदें 2 लगातार छक्के। फौरन से आना पड़ा वहां पर उमर बाजवा को उनके पास। रन्स रोकना होंगे। 15-16 रन पर ओवर के हिसाब से ज्यादा नहीं है इस विकेट पे। इस बार डीप फाइन लेग मौजूद नहीं है। गेंद बाउंड्री को अबूर कर जाएगा 4 रन के लिए। आखिरी 3 गेंदों पर 16 रन बटोर लिए हैं गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स ने। अयूब 15-16 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने हैं और 16 3 गेंदों पर आ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे मुल्तान की टीम को अगर जीतना है तो आउट करना होंगे, अदरवाइज जो औसत है वो यहाँ पे नहीं रुक सकती। इस बार अच्छा बॉल और 1 ही रन आएगा। इलियास जानी, शुएब बुज़दार और उसके बाद इमरान खान फ्रॉम अटक, वसीम लेफ्टी। एक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है टीम वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला की। जी हाँ, 16 रन आ चुके हैं। 16 रन पर ओवर के हिसाब से ही चाहिए लेकिन मसला ये है यहाँ पर गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स के लिए कि उनके जो बल्लेबाज हैं टीम वो वापस आ चुके हैं। बल्ले का भारी किनारा है, फील्डर नीचे है और कैच ड्रॉप। क्या ये मैच ड्रॉप कर दिया है। अगर ये कैच पकड़ते तो यकीनन दोबारा बैकफुट पर धकेला जा सकता था वासिफ स्पोर्ट्स गुजरांवाला को। ये देखिए बल्ले का भारी किनारा, गेंद काफी देर हवा में रही लेकिन काफी आगे खड़े थे फील्डर एक्स्ट्रा कवर से, उनको पीछे की तरफ दौड़ना पड़ा। ये वजह है कि वो कैच पकड़ नहीं सके। टेप बॉल में छोटी बाउंड्री है, एक्स्ट्रा कवर के काफी आगे खड़े थे। आगे से पीछे आना जरा मुश्किल है, पीछे से आगे दौड़ना आसान रहता है। तो यहाँ गलती की वहां पर फील्डर ने। जी हाँ, बड़ा चांस मिस किया यहाँ पे। हालांकि काफ़ी मुश्किल था ये कैच, लेकिन नामुमकिन नहीं था। बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी शुएब बुज़दार की जानिब से। एक बात और भी बताता चलूँ आपको, शुएब बुज़दार काफ़ी अरसा मुल्तान ड्रीम 11 का हिस्सा रहे हैं और आज उन्हीं के अगेंस्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर का बिल्कुल खेल जारी है। छोटा उम्री को लाया गया है, गुजरांवाला से ताल्लुक़ है। सामना करेंगे इलियास जानी, इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और 95 तक जाना है 6 ओवर्स में। आज के दिन का ये लास्ट मैच है। छोटा उमरी रावाली से इनका ताल्लुक है, उनको बॉल थमाया गया है। पहली गेंद, गेंद पॉइंट की जाने बढ़ रही है, फील्डर गेंद के पीछे है, गेंद आगे है और आखिरकार गेंद बाउंड्री को अबूर कर जाएगी 4 रन के लिए। 8 रन चाहिए गुजरांवाला वासिफ स्पोर्ट्स को, चाहे वो किसी भी तरह से आए, और रन आ रहे हैं। रन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, जो परेशानी का सबब है यहाँ पर मुल्तान ड्रीम 11 के लिए। जब हसन पेंडा बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत आसान है यहाँ पर बल्लेबाजी करना। जी हाँ, शुएब बुज़दार ने भी आते ही जिस तरह अटैक किया बॉलर्स के ऊपर, तो लग रहा था कि बहुत आसान है विकेट, लेकिन बहरहाल एक बार फिर से छोटा उमरी आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल, वाइड बॉल होगा।
बॉलर्स ने भी आज वकार यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करवाई है, तो विकेट दोनों को सपोर्ट कर रही है, बैटर और बॉलर दोनों के लिए तकरीबन सेम रिएक्शन है पिच का। लेकिन तैमूर मिर्जा के लिए आज का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा और बगैर किसी बाउंड्री के 2 मैच खेले हैं और आउट हो गए हैं। जी हाँ, छोटा उमरी एक बार फिर, इस बार खराब गेंद, पिल पड़े इस गेंद पर, गेंद पहुंचाए मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। जब तक मौजूद हैं इलियास जानी तो उनको रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 8 गेंदों पर 31 रन बन चुके हैं। ये देखिए, क्रॉस खेले, गेंद की इतनी रफ्तार नहीं कि उनको परेशान कर सके। गेंद बहुत दूर गई है बाउंड्री से 6 रन के लिए। इलियास जानी, विंग्स स्पोर्ट्स का बल्ला हासिल, इस बार भी 106 गिनती कीजिए। 2 गेंदें, 2 लगातार छक्के। तैमूर मिर्जा के आउट होने के बावजूद टीम जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। वो जो कैच ड्रॉप हुआ है वो बार बार याद करेगी मुल्तान ड्रीम 11। छोटा उमरी, ये आगे किया था गेंद, बॉडी को टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन जितनी अच्छी फॉर्म में इलियास जानी, मुश्किल है। जी हाँ, वंस अगेन एक और बेहतरीन शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है। 3 बॉल पर मुसलसल 3 छक्के इलियास जानी की जानिब से, केपीके से ताल्लुक है और ये शायकीन में से किसी एक ने कैच भी पकड़ा है। कैच तो नहीं पकड़ सके, लेकिन बॉल जरूर उन्होंने पकड़ा है और ये बॉल उनके साथ जाएगा। छोटा उमरी, रिक्वायर्ड 112 पर है इस बार। ये अच्छा गेंद है, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद, इस बार ज्यादा डैमेज नहीं, सिंगल। 44 रन हो चुके हैं और दूसरे ओवर का लास्ट बॉल अभी बाकी है। इलियास जानी ने 5 बॉल्स का सामना किया है, 23 रन बनाए हैं। शोएब बुजदार 20 रन बना चुके हैं 5 बॉल्स पर और करंट जो रन रेट है वो 24 रन पर ओवर की एवरेज के साथ दोनों बल्लेबाजी करते हुए। इस बार अच्छा बॉल और यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। इसके साथ 2 ओवर मुकम्मल, 45 पर 1 आउट। $45 बन चुका है, 95 बनाना है, 50 रन बाकी हैं। बाकी मानदा 24 गेंदों पर तकरीबन 12.5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने हैं। वसीम लेफ्टी कुछ मैसेज लेकर आए हैं। पाकिस्तान टेबल चैम्पियनशिप, जिसका मजमूई तौर पर जो प्राइज़ मनी है वो 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि 15 मिलियन प्राइज़। इलियास जानी 5 गेंदों का सामना उन्होंने किया है, 23 पर नाकाबिल शिकस्त हैं। शोएब बुजदार ने 6 गेंदों का सामना किया, 20 पर नाकाबिल शिकस्त हैं। छोटा उमरी का आखिरी ओवर अच्छा नहीं गुजरा, 24 रन आए उनको। समय से बालातर है कि वसीम शिनवारी को हमने कल देखा, एक सुपर ओवर उन्होंने किया 9 रन पर, उसके बाद 2 ओवर उन्होंने किए पिंडी की सरजमीन पर, किसी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, 1 मैन शो किया एज ए बॉलर पिंडी में। उनको 30वें ओवर में लेकर आए हैं कप्तान। हालांकि छोटा विकी वहीं पर मौजूद थे जब वसीम शिनवारी ने बॉलिंग की वहां पर। बहरहाल
50 अभी भी बाकी हैं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्रिकेट है। वसीम शनवारी, अच्छी बॉलिंग की तवक्को है उनसे। जी हाँ, पहला गेंद अच्छा है, बड़े मंजे हुए होशियार बॉलर, आसानी से मार खाते नहीं हैं वसीम शनवारी। पहला गेंद अच्छा किया है, क्रॉस खेलने के लिए गए थे शुएब बुज़दार। तेईस गेंदें हैं, 50 रन बाकी हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। दोबारा देखिए, जी हाँ, नीचे रहा थोड़ा सा गेंद। इस बार भी एक और अच्छा गेंद है, दो लगातार अच्छी गेंदें। जिसने अयूब अच्छी बॉलिंग करनी है वो यहाँ भी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। आपने इरशाद अफरीदी को देखा है, मेरा ख्याल है 2 ओवर में उन्होंने 5 या 6 रन दिए, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है टेप बॉल में। तो जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वसीम शनवारी की ये 2 गेंदें दोनों कामयाब गेंदें। इसी तरह की बॉलिंग चाहिए मुल्तान को अगर इस मैच में वापसी करनी है। एक अच्छा ओवर चाहिए। वसीम एक बार फिर एक बार कट करना चाह रहे हैं, थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद हैं, गेंद को पहुंच के रोका है उन्होंने सिंगल के लिए। ज्यादा डैमेज नहीं, 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया है अब तक वसीम शनवारी ने। जी हाँ, अच्छा कमबैक वसीम शनवारी की जानिब से। ये देखें 2 बॉल एक ही लाइन और लेंथ में, और शुएब बुज़दार बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। और जो रन्स की रफ्तार थी उसको यहाँ पे रोका है वसीम शनवारी ने। एक बार फिर से, इस बार बेहतरीन कनेक्शन मिड विकेट के ऊपर से, एक खूबसूरत छक्का शुएब बुज़दार। और पहला छक्का यहाँ पे वसीम शनवारी को भी शुएब बुज़दार के बल्ले से। 12.60 रन्स की जो रिक्वायर्ड रन रेट है, और मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है जिस कैलिबर के बल्लेबाज दोनों विकेट पर मौजूद हैं। एक बार फिर से वसीम फुल लेंथ बॉल करना चाह रहे थे, लेकिन खूबसूरत शॉट, उम्दा कनेक्शन शुएब बुज़दार। 2 बॉल पर मुसलसल 2 छक्के, काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं तैमूर मिर्जा इनकी बल्लेबाजी से। और तैमूर मिर्जा के आउट होने के बावजूद पिछला मैच भी इनकी टीम विन कर गई थी, और इस मैच में भी माजरत जी पिछला मैच हार चुके थे। जी हाँ, ये दोनों टीमें पहला मुकाबला हार चुकी हैं अपना। इस बार गेंद की रफ्तार जो है उसमें रद्दोबदल किया है, समझने से कासिर रहे वहां पर शुएब। 36 बाकी हैं अब 18 गेंदों पर। 18 गेंदें, 36 बाकी हैं। 12 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने, 12 रन पर ओवर के हिसाब से मुश्किल नहीं है। 3 सुपर बॉल्स हैं, 3 सुपर बॉल में 10 माइनस भी हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो इलियास जानी ने कैच छोड़ा था सुपर बॉल पे 10 माइनस से, उसके बाद 2 सुपर बॉल पे 2 लगातार छक्के लगे ज़हीर कालिया को। ये वजह है कि मजमुआ 95 तक पहुंचा है। इसको बॉल थमाया जा रहा है, जैद लेफ्टी में रखल है, दोबारा जैद लेफ्टी का इंतखाब किया जा रहा है। टीएम एंड कंपनी फिलहाल अपनी जो टीम है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आते हैं। होना चाहिए 12 रन पर ओवर के हिसाब से मुश्किल है रोकना। ये जो 12 गेंदें हैं, ये 12 गेंदें बहुत ज़रूरी हैं। इन 12 गेंदों पर बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। ये जो 18 गेंदें हैं, 36 रन बाकी हैं, 12 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने हैं। और करंट रन रेट जो है वो 19.67 है। जैद लेफ्टी एक बार फिर से दौड़े हैं, अंपायर को क्रॉस करें। इस बार शॉट खेला है, गेंद पहुंचा है लॉन्ग ऑफ के पास, ज़्यादा डैमेज नहीं, 1 रन
का इजाफा, वहाँ पर थोड़ा सा फंबल हुए। मुल्तान की टीम जो है वो कहीं ना कहीं वो सोच रही है कि सुपर बॉल्स है। अमूमन तो ये बल्लेबाज के फेवर में नज़र आते हैं, लेकिन अगर जो सुपर बॉल है अगर उस पर विकेट मिल गया तो फिर गेम ऑन है मुल्तान के लिए। जी हाँ, बल्लेबाजी में भी सुपर बॉल का इन्होंने सहारा लिया था। दो सुपर बॉल्स पे 2 छक्के लगे थे उस्ताद ज़हीर कालिया को कलीम मुल्तानी के हाथों। और यहाँ पे अगर विकेट मिल जाता है तो सारी जो गेम है इस मैच में मुल्तान की वो सुपर बॉल के गिर्द ही घूमेगी। एक बार फिर जैद लेफ्टी, एक और अच्छा गेंद, गेंद मिड विकेट की जानिब जा रही है सिंगल के लिए। अच्छा ओवर अब तक जैद लेफ्टी का। हमने देखा है कि इससे पहले वसीम शनवारी ने भी जो है वो 3 गेंदें बल्कि अच्छी की थी, उसके बाद उनको रन आए। और 95 रन्स बनाना और 95 को बचाना बहुत मुश्किल काम है। शॉट खेला इस बार, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री को अबूर कर जाएगा 6 रन के लिए। फ्लैट शॉट है, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, वरना कैच हो सकता था, विकेट हासिल हो सकता था। पहली 2 गेंदें अच्छी की हैं जैद ने और उसके बाद छक्का। ये दोबारा देखिए, गेंद में कोई खराबी नहीं, खुद को बचाया, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, दूर दूर तक। इस बार भी गेंद को लग गए हैं पर 2 गेंदें, 2 लगातार छक्के, और जब एक छक्का लगाते हैं तो दूसरा जरूर लगाते हैं। इलियास जानी जो कि आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में। ये लास्ट जो 12 बॉल है वो देख लीजिए, जिसमें 4 छक्के आए आखिरी 12 गेंदों पर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 22 रन बाकी हैं। इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, फील्डर मौजूद यहाँ पे, 1 ही रन मिलेगा। इलियास जानी, शोएब बुजदार दोनों बड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 74 रन हो चुके हैं। चौथे ओवर का आखिरी बॉल करवाएंगे, जैद नौरवाल से ताल्लुक है। बॉल की, वाव क्या कहेंगे शाह जी, खूबसूरत तरीन शॉट आज के दिन का, और ये शॉट आया है शोएब बुजदार के बल्ले से। आगे फेंका गया गेंद, गेंद में कोई खराबी नहीं। वाह, लुक एट दैट, एक्सीलेंट फ्रॉम शोएब बुजदार। ये बार बार देखिए, बार बार मजा आएगा आपको। वाह, ये शॉट से जाहिर है कि कितनी अच्छी फॉर्म में शोएब बुजदार जो हैं। और मेरा ख्याल है वो सुपर बॉल का जो रिस्क है वो लेना नहीं चाह रहे, उससे पहले मैच को फिनिश करना चाह रहे हैं। 12 गेंदें, 15 रन बाकी हैं। कोशिश करेंगे कि बिना सुपर बॉल लिए इस मैच को खत्म किया जाए। जी हाँ, 12 बॉल्स 15 रन। और इस बार इलियास जानी सामना करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्कुल देखा जा सकता है दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर। और मुल्तान की टीम इस वक्त पूरी तरह बेबस नजर आ रही है। 92 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और आज पहला दिन है क्योंकि टेप बॉल, छक्के और चौके की गेम है। मुख्तसर फॉर्मेट की ये क्रिकेट जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए बेहतरीन तफरीह है। और DHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान टेप बॉल चैम्पियनशिप, ये बड़ा टूर्नामेंट जारी है। आप भी कल तशरीफ ले आइए। टूर्नामेंट 4 जो है ना वो 27 है। और इस बार फुल टॉस बॉल किया था, तलाशमी को लाया गया है। 11 बॉल्स हैं, 15 रन बाकी हैं। जी हाँ, तलहा हाशमी अरसा दराज से मुल्तान ड्रीम 11 का हिस्सा हैं। कई मैचेस उन्होंने तनहा अपनी टीम को जितवा भी रखे हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। बल्ले पर गेंद आ रही है इलियास जानी और शोएब बुजदार के। जब दोनों बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में हों तो फिर 11 गेंदों पर 15 बचाना, वो भी टेप बॉल में, बहुत मुश्किल है। तलहा हाशमी ताल्लुक इनका मुल्तान से।
आगे फेंका गया गेंद, हिट मी बॉल, गेट्स द ट्रीटमेंट। और एक और गेंद हमारा जो है वो वो नहीं वापस आएगा। पहला छक्का तलहा हाशमी को, 9 रन बाकी हैं गालिबन। खराब गेंद, आसान गेंद किसी भी बल्लेबाज के लिए, ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी इलियास जानी को। वैसे ही बड़ी अच्छी फॉर्म में इलियास, 50 मुकम्मल कर सकते हैं ये छक्का लगाकर। जी हाँ, गोइंग गोइंग गॉन, मैक्सिमम, नो बॉल इज वेल। 50 रन मुकम्मल किए इलियास जानी ने। इस छक्के के साथ आज हसन पेंडा ने सेंचुरी की, 50s भी हमें देखने को मिली। बारह गेंदों पर 50 रन बना चुके हैं, क्योंकि ये नो बॉल है। 384 का स्ट्राइक रेट। तलहा, ये लीजिए शॉट खेला है, वहां पर फील्डर हैं और गेंद को आखिरकार रोका है उन्होंने सिंगल के लिए। एक रन बाकी है, मेरा ख्याल स्कोर लेवल हो चुका है। आज की बात करें तो मैच जीता है, 2 मैच जीते हैं एबटाबाद सबील टाइगर। एक मैच जीत लिया है गुजरांवाला ने, दोनों मैचेस हारे हैं यहां पर मुल्तान ड्रीम 11। शॉट खेला इस बार, द जॉब इज डन एंड डस्टेड। मैच खत्म किया यहां पर शुएब बुजदार ने। हालांकि तैमूर मिर्जा पहली गेंद पर आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम ने मैच में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वापस आ गई है। मुल्तान ड्रीम 11 गुजरांवाला ने डोमिनेट किया इस मैच में। और अगर